Welcome students. Welcome to the e-learning session of Accountancy. Today we'll start with a new chapter, that is chapter 10, which is Accounting for Goods and Services Tax. Okay, GST that you know. So GST is the short form and the full form is Goods and Services Tax. So we are going to start with the following topics. The first one is meaning of GST. Okay, then we will cover what different taxes which were there before GST and which are now at present merged into GST. Next, GST structure, tax structure. What are the characteristics of GST and then what are the objectives or advantages of GST. Okay, so these are the areas we will focus on in today's session. Okay, so let's begin with the first topic, that is meaning of GST. What is GST? Okay, as I already told you that GST is Goods and Services Tax. Now there are two types of taxes. Okay, in when you will go for higher studies, maybe in BCom or in some other higher classes, you will learn taxes. Okay, there will be a subject called tax. You must have heard the term tax before. All of us have heard. Maybe you don't know in details about tax, but you must have heard the term tax. Okay. Now, there are two types of taxes basically. One is a direct tax, the other one is an indirect tax. Okay. The direct tax is like income tax, corporate tax, okay, wealth tax, gift tax. These are direct taxes. Direct in the sense, the person on whom it is levied. Levied means जिस पे लागू किया जा रहा है, जिससे मांगा जा रहा है. Okay. The tax is levied on one person. Levy, L-E-V-Y. Okay, levy means to apply. Okay, so when the tax is applied on one person, the same person is paying the tax, then it is a direct tax. Okay, that means the tax has been asked from one person and the same person is bearing the burden of that tax. वो अपने pocket से ही pay कर रहा है, then it is a direct tax, like income tax. Okay, if the income tax is levied on me, then I will be paying the income tax on my income myself. Okay, so that is a direct tax. In the same way, companies pay corporate tax. Okay, what is corporate tax? It is just like income tax. We as individuals pay income tax. Corporate world, like companies, they pay corporate tax on their income. Okay, so it is also a direct tax. But there are certain types of taxes which are applied on one person, but the burden of that tax falls on some other person. Okay, for an example, goods and services tax. What happens in this case? If a person is selling the goods or services, okay, if a person is selling any goods or service, then government is applying the tax on that person on his sale of goods or service. Okay, now when he is selling the goods or services and the tax has been levied on him, but he or she is not paying it from his or her pocket. Okay, the tax is being paid by some other person. That means suppose you are visiting a restaurant. Okay, you are visiting a restaurant. There you must have noticed when you get the bill of the whatever you have purchased, there you will see in the bill there is goods and services tax. What does this mean? The person who is owning the restaurant, okay, who is the owner of the restaurant, that person is supplying the goods, that person is supplying the service, but that person is not paying the tax, although the tax has been levied on him. Tax has been levied on him, but he is not paying the tax. Who is paying the tax? We, the customers, isn't it? Same way you are purchasing any good from anywhere, we are paying tax on that. Okay, but the tax has been levied on the seller, but he is collecting that tax from us. So ultimately the burden of tax is falling on whom? Us as the customers. Okay, so indirectly we are paying the tax. Okay, so ultimately what happens is the person on whom the tax is levied, okay, he is collecting from the customers and then paying it to the government. So he is directly not paying from his pocket, he is collecting from us and then paying it. So it is an indirect tax. Okay, तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें जिस पर्सन से टैक्स मांगा गया उसी ने अपने पॉकेट से पे किया, मतलब जिस पे टैक्स लागू किया गया उसी पे बर्डन पड़ा टैक्स पेमेंट का. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनसे मांगा गया है उसने खुद पे नहीं किया, उसने किसी और से
से लेकर पे किया है, मतलब जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, वो किसी और के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका है व्हाट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ वी विल फोकस ऑन जीएसटी। Now, before GST came into India, there were so many taxes in India, so many indirect taxes, ठीक है, बहुत तरीके के टैक्सेस थे, we will see it just now। तो ये जो टैक्सेस थे इनके कारण इंडिया में बहुत ज़्यादा जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्ट्रक्चर था, इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ओके, and that is why people were avoiding taxes, people were not paying the tax properly, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था कि टैक्स अवॉइडेंस की सिनेरियो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा टैक्स अवॉइडेंस हो रहा था, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट देयर शुड बी ओनली वन टैक्स in one nation, like India is one country, so there should not be so many taxes in India, there should be one tax all over the India, okay, that means the tax structure should be uniform, है ना, एक जैसा टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए पूरी कंट्री में, इसीलिए जीएसटी को लाया गया, ओके। सो जीएसटी इज, इट हैज कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, जीएसटी जो है 2017 1 जुलाई से लागू किया गया है, लेकिन जीएसटी एक्ट कब आया था, इट केम ऑन 24th March of the same year, 24th March 2017, 24th March 2017 को जीएसटी का जो एक्ट है वो पास किया गया पार्लियामेंट, ओके, और उसके बाद जब एक्ट अप्रूव हो गया, पास हो गया पार्लियामेंट में, तो वो इफेक्टिव कब से हुआ, वो लागू कब से हुआ, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। सो दिस इज जीएसटी इनैक्टमेंट, इनैक्टमेंट मतलब कब उसका एक्ट आया और कब वो लागू किया गया, कब वो पास हुआ, ठीक है। Now, GST is a comprehensive tax which is levied throughout the country, okay, as an indirect tax on the sale of goods and rendering of services, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स मतलब जब भी आप एज अ सेलर, जब भी आप कोई भी गुड्स सेल करेंगे या आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो जब भी आप सर्विस रेंडर करोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे, हर बार आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे जीएसटी, but you will not pay it from your pocket, you will collect it from your customers and then pay it. So it is an indirect tax which is a comprehensive, comprehensive means it is covering all the areas, all the goods, all the services, ठीक है, throughout the country except on two things, दो चीजों पे ये लागू नहीं हो रहा है, किस किस चीज में, एक पेट्रोलियम पे, दूसरा अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। अगर पेट्रोल और अल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है तो उन पे जीएसटी नहीं लग रहा है अभी, ठीक है, बाकी सारे गुड्स एंड सारी सर्विसेज पे जीएसटी लग रहा है, ओके। कब लगता है जीएसटी, व्हेनेवर देयर इज अ सेल ऑफ गुड्स, व्हेनेवर देयर इज अ रेंडरिंग ऑफ सर्विस, जब भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जब भी गुड सेल हो रहा है, तब जीएसटी अप्लाई हो रहा है, तब जीएसटी चार्ज हो रहा है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट जीएसटी। It is a comprehensive one nation one tax structure, okay, and it is followed throughout the country, throughout India, और इसमें बहुत सारे टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम बाद में भी देखेंगे। अब हम आएंगे उस पॉइंट पे कि कौन कौन से टैक्सेस थे जीएसटी के पहले ना, बिफोर जीएसटी बिकेम इफेक्टिव, बिफोर जीएसटी वाज अप्लाइड ऑल ओवर इंडिया, व्हिच टैक्सेस वर देयर बिफोर, ठीक है, कौन कौन से टैक्सेस थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टैक्सेस थे जीएसटी आने के पहले, टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, है ना, बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे, तो लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि कौन सा टैक्स कैसे पे करना है, सो दे यूज्ड टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑल टुगेदर। तो जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, है ना, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक सिंपल स्ट्रक्चर ले आया थ्रू आउट द कंट्री, ओके, अंडर द टर्म जीएसटी। अब जीएसटी जब आया तो कौन कौन से टैक्सेस थे, लाइक सी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी अपने कुछ स्पेशल टैक्सेस होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में जाते हैं, कुछ टैक्सेस होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में जाते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत से टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे और जीएसटी आने के बाद वो जीएसटी में मर्ज हो गए, जीएसटी भी में ही शामिल हो गए। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्सेस थे जो वापस जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस थे। फर्स्ट इज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो था वो प्रोडक्शन पे टैक्स था, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन होता था ना उस पर टैक्स लगता था, तो अब ये टैक्स हट गया और ये जीएसटी में ही शामिल हो गया, ओके। देन देयर वाज सर्विस टैक्स, जब भी सर्विस होती, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस टैक्स पे करता था, वो भी अब हट गया, वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में ही आ गया। देन
देयर वाज सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सेल्स पे टैक्स था, तो ये भी हट गया और सारी चीजों की जगह अब क्या आ गया, देयर इज ओनली वन टैक्स दैट इज जीएसटी। ये तीनों जो टैक्सेस है, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड सर्विस टैक्स, दीज वेर सेंट्रल टैक्सेस, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, उसके पॉकेट उसके रेवेन्यूज में जाता था। तो ये जो टैक्सेस है ये अब हट चुके हैं, रिप्लेस किसने किया है, जीएसटी में, ठीक है, वो जीएसटी में ही आ चुके हैं। अब हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट लेवल के कौन कौन से टैक्सेस थे। स्टेट लेवल के सबसे पहले देखिए ऑक्ट्रॉय ड्यूटी था और एंट्री टैक्स था, बहुत तरीके के। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी इज समवेयर रिलेटेड टू द यू कैन से द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स एंड परचेज टैक्स, गुड्स के परचेज का जो टैक्स होता है। फिर वैल्यू एडेड टैक्स था जिसको हम वैट बोलते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट पे टैक्स था, लग्जरी गुड्स पे, लग्जरी यू कैन से जो भी आप लग्जरी आइटम्स यूज कर रहे हो, रिजॉर्ट वगैरह, एंटरटेनमेंट के टैक्स है ना, ये सारे पे टैक्स था। लॉटरीज पे टैक्स था, अगर आपकी कोई लॉटरी इनकम हो रही किसी भी सोर्सेस से, तो जिसको बोलते हैं विंडफॉल गेन्स हो रहे हैं, तो उस पे टैक्सेस जो लगता है उसको हम लॉटरी टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे टैक्सेस किसके होते थे, स्टेट लेवल टैक्सेस, स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाते थे। तो ये टैक्सेस को भी जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो आपसे में भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपसे पूछा जाए कि स्टेट लेवल पे कौन कौन से टैक्सेस थे जो मर्ज हो गए हैं जीएसटी में, या फिर सेंट्रल लेवल पे कौन कौन से टैक्सेस थे जो अब जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। सो यू विल हैव टू नो, यू शुड नो कि कौन कौन से टैक्सेस थे, ठीक है। सो सेंट्रल लेवल पे एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। स्टेट लेवल पे कौन कौन से, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स एंड टैक्सेस ऑन लॉटरी इनकम, ओके। तो ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे। अब सारे टैक्सेस हट चुके हैं, सबको सिंगल वन नेशन वन टैक्स की स्कीम लागू हो गई है जिसमें आ गया है जीएसटी, ओके। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सारे गुड्स एंड सर्विसेज, सारे सर्विसेज पे अब सिर्फ जीएसटी लगता है थ्रू आउट इंडिया, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, ठीक है। जीएसटी का जो टैक्स स्ट्रक्चर है, टैक्सेस की रेट्स हैं, वो क्या क्या है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ rates have been given for different products. As a government policy, government generally puts the burden on luxury items. Okay, the tax burden is mainly on the luxury items because they are purchased by rich people, and the necessary goods, the general use goods, okay, which are purchased by the masses, they are either exempt from taxes or they are put in the lowest tax category, okay. So let's see what types of rate structure is there in the GST tax rate, okay. So first the first thing that we will talk about is the essential items. जो बहुत essential items हैं, जो बहुत necessary items हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं है, that is falling under the 0% tax category, ठीक है। वो 0% रेट में आते हैं। उनको क्यों 0% पे रखा गया है, जिससे कि everyone should be able to purchase it, है ना। इट शुड बी नॉट बी वेरी कॉस्टली, क्योंकि टैक्स लगने के बाद जो भी गुड्स हैं उनके प्राइसेस जो हैं और बढ़ जाती हैं। सो दे शुड बी अफोर्डेबल बाय द मासेस, दैट इज वाई दे आर केप्ट अंडर द 0% टैक्स कैटेगरी, ओके। व्हाट आइटम्स, द मोस्ट एसेंशियल एंड नेसेसरी आइटम्स। नेक्स्ट इज कॉमन यूज गुड्स। एसेंशियल आइटम्स में फूड आइटम्स भी आ जाते हैं, जो नेसेसरी फूड आइटम्स हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉमन यूज गुड्स की, जो बहुत जनरली यूज्ड गुड्स हैं, जो कि डे टू डे बेसिस पे रिक्वायर्ड होते हैं, वो भी एक तरह से नेसेसरी गुड्स भी हो जाते हैं, है ना। तो सच गुड्स आर आल्सो केप्ट इन द लोएस्ट टैक्स कैटेगरी। वो 0% में नहीं है, लेकिन बहुत मिनिमम टैक्स स्ट्रक्चर में आते हैं, दैट इज 5% टैक्सेस अप्लाई होता है उससे, ठीक है। कौन से गुड्स, वो गुड्स जो डेली बेसिस पे आपको जरूरत है, ओके, एसेंशियल आइटम्स बट विच आर यूज्ड ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट मतलब एक जो सारे चीजों पे जो अप्लाई होता है, दैट इज नोन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स अ फिक्स्ड रेट, ठीक है। अगर कोई भी कैटेगरी में नहीं तो स्टैंडर्ड रेट अप्लाई होगा, तो दैट इज 12%, ओके। नेक्स्ट इज मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज फॉलिंग अंडर 18% टैक्स कैटेगरी। तो ज्यादातर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो 18% के अंदर में आ रहे हैं, ठीक है, 18% टैक्स कैटेगरी मोस्टली। तो जो एसेंशियल आइटम्स है, मोस्ट एसेंशियल आइटम्स
वो 0% टैक्स कैटेगरी। जो कॉमनली यूज गुड्स हैं वो 5% में आ रहे हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड रेट है वो 12% है, लेकिन ज्यादातर जो गुड्स एंड सर्विसेज के आइटम्स है वो 18% के टैक्स कैटेगरी में फॉल करते हैं। जो लग्जरी गुड्स हैं, ओके, जो बहुत इस तरह के गुड्स हैं जो कि आम जनता नहीं खरीद रही है, ओनली परचेज्ड बाय वेरी रिच पीपल, so they are kept in the highest tax category of 28%, ठीक है। तो 28% हाईएस्ट टैक्स कैटेगरी है जो लग्जरी गुड्स पे लगती है। बाकी ज्यादातर गुड्स पे कितने लगती है? 18%। स्टैंडर्ड रेट कितने हैं हमारे? 12%, ठीक है। जो कॉमनली यूज गुड्स वो 5% की कैटेगरी में आते हैं, और जो बहुत एसेंशियल गुड्स हैं वो 0% कैटेगरी में, ठीक है। तो ये एक जनरल टैक्स का स्ट्रक्चर है जीएसटी का। अब जीएसटी में क्या होता है ना कि whenever you are purchasing goods, if you are a producer, okay, if you are businessman, आप क्या करते हो? कहीं से गुड्स खरीदते हो, okay, that is, and there you are paying GST when you are purchasing goods, से रॉ मटेरियल जो भी आप खरीद रहे हो उसमें आपने जीएसटी पे किया होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इनपुट जीएसटी। जो आप परचेज पे देते हो, परचेज करने के टाइम में, वो इसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। वो आपका कॉस्ट नहीं माना जाता, वो आपका कॉस्ट नहीं माना जाएगा, वो आपका एसेट माना जाएगा। क्यों एसेट माना जाएगा? इट इज एन एसेट बिकॉज व्हेन यू विल सेल द गुड्स, जब आप गुड्स बेचोगे उस समय आप जीएसटी जब कलेक्ट करोगे ना, तो वो जीएसटी में से ये जीएसटी, मतलब जब आप सेल करते हो तो जो जीएसटी कलेक्ट करते हो दैट इज नोन एज आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो आउटपुट जीएसटी में से आप इनपुट जीएसटी को माइनस कर देते हो, सेट ऑफ कर देते हो, ठीक है। तो आउटपुट जीएसटी में से जब आप इनपुट जीएसटी को माइनस कर दोगे तो वो आपकी लायबिलिटी रहती है। एक्चुअल यू आर मेकिंग द पेमेंट दैट मच, ठीक है। सपोज करिए आपने इनपुट कैटेगरी में इनपुट टैक्स दिया था, मैंने परचेज के टाइम में यू पेड जीएसटी ऑफ से 2000 रुपीज, ठीक है। आपने 2000 रुपए का जीएसटी पे किया था एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। व्हेन यू आर सेलिंग द गुड्स यू आर कलेक्टिंग 5000 जीएसटी एज जीएसटी, ठीक है। तो सेल करने के टाइम में जो आप कलेक्ट कर रहे हो दैट इज आउटपुट जीएसटी एंड दैट इज से सपोज 5000। तो फाइनली व्हाट विल बी द पेमेंट टू द गवर्नमेंट? आप कितना जीएसटी पे करोगे फाइनली? यू विल नॉट पे 5000, यू विल नॉट पे 2000, यू विल पे 5000 माइनस 2000, दैट इज द नेट अमाउंट, दैट इज 3000, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो इनपुट जीएसटी है वो सेट ऑफ हो जाता है आउटपुट जीएसटी से। जो आपने इनपुट में दिया और जो आपने आउटपुट से कलेक्ट किया, ठीक है, उन दोनों को हम सेट ऑफ करते हैं। जो एक्स्ट्रा बचता है वो पेमेंट होता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो यू कैन नॉट से कि जो आउटपुट जीएसटी है जो आप कलेक्ट कर रहे हो ये आपका इनकम हो गया, वो आपका इनकम बिल्कुल नहीं है, दैट इज योर लायबिलिटी, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल बी पेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है। सिमिलरली जो इनपुट के टाइम में आप पेमेंट कर रहे हो इट इज ऑल्सो नॉट योर कॉस्ट, वो कॉस्ट नहीं है आपका, वो एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि वो आपका जो आपने दिया है वो सेट ऑफ हो जाएगा ना, तो एक्चुअली इट इज नॉट गोइंग फ्रॉम द पॉकेट, इट इज नॉट गोइंग, ठीक है। तो ये हमारा जनरल एक स्ट्रक्चर है, लेकिन समटाइम दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट गिवन टू, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ये जो सेट ऑफ होता है ये कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें हैं, सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्जेम्प्ट मतलब जिन पे टैक्स लगता ही नहीं है, वो टैक्स के परव्यू से बाहर है, दे आर आउट ऑफ द यू कैन से स्कोप ऑफ टैक्स, ठीक है। तो इस तरह की कौन कौन सी चीजें हैं, लेट्स सी। सबसे पहले when is the input GST not set off against output GST? कब कौन कौन सी चीजों में ऐसा होता है कि जब इनपुट जीएसटी जो है सेट ऑफ नहीं होती है आउटपुट जीएसटी से? सबसे पहले देखिए when जीएसटी पेड ऑन रेस्टोरेंट बिल। आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए एंड यू परचेज गुड फूड आइटम, बेवरेजेस, व्हाटएवर, वहां पे जब आप बिल देते हो तो उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होता है। डू यू गेट इट? अब आप ये फूड आइटम बेचने तो जाओगे नहीं, यू विल कंज्यूम इट, isn't it? And you will not collect any GST from anyone. You have paid on the purchase, but you will not collect it on any sale, क्योंकि ये फूड आइटम आप बेचने नहीं जाओगे। तो ये जो है ये आपका एक्चुअल कॉस्ट होगा, दिस इज योर कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी आपका कॉस्ट माना जाएगा, यहाँ ये एसेट नहीं है, क्योंकि वंस यू हैव पेड टू द रेस्टोरेंट यू आर नॉट गोइंग टू कलेक्ट दैट जीएसटी फ्रॉम एनीवन, तो सेट ऑफ होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एसेट नहीं होगा, यहाँ पे आपको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है इनपुट का, you are paying it from your pocket, so it is a cost. Next is GST on purchase of vehicles. In the same way, अगर आप vehicles खरीदते हो अपने यूज के लिए, है ना, तो vehicles खरीदा उसपे you are paying GST. You will not sell this vehicle to anyone,
So are you going to collect any GST on this vehicle? No. So how will you set off this GST paid on vehicle? So once you have paid, it is a cost for you. ठीक है, वो आपके पॉकेट से चला गया, अब वो सेट ऑफ होने का कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुछ इस तरह के केसेस होते हैं जहाँ पे आपके GST सेट ऑफ नहीं हो पाती। ठीक है, ज्यादातर पर्सनल यूजर्स के होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट बिल पे आपने जब पेमेंट किया तो यू वेंट टू द रेस्टोरेंट, यू हैड द फूड, यू हैड द बेवरेजेस एंड सो यू पेड द बिल। ठीक है, वहाँ पे GST आपने पे किया, उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। व्हीकल्स आपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, सो दे आल्सो यू हैव पेड द GST and you cannot set it off because you are not selling the vehicle to anyone. Next is GST paid on free gifts. अगर आपने स्टाफ को अपने फ्री गिफ्ट बांटा है तो वो फ्री गिफ्ट आपके लिए तो फ्री नहीं था ना, स्टाफ के लिए फ्री है। You had purchased it from somewhere and you must have paid GST on it. ठीक है, आपने जब उसको खरीदा होगा तो आपने GST पे किया होगा, लेकिन अब आप अपने स्टाफ को फ्री में दे रहे हो, यू आर नॉट सेलिंग इट टू द स्टाफ, यू आर पेइंग गिविंग देम एज फ्री गिफ्ट। So will they pay any GST to you? Will you collect any GST from the staff? No. तो आप नहीं कलेक्ट कर रहे हो कोई GST, तो ये सेट ऑफ कैसे होगा? जो आउटपुट में आपने दिया है वो यहाँ पे सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी कॉस्ट बन जाएगा आपके लिए। ओके, दिस GST you have paid on the purchase of gift it is a cost for you, ये एसेट नहीं है। उसी तरह से GST on any goods or service for personal use, कुछ भी आप पर्सनल यूज के लिए खरीदिए जिसपे आपने GST दे दिया है लेकिन वो पर्सनल यूज के लिए उसको सेल नहीं किया जाएगा तो GST कलेक्ट नहीं होगा, सो यू विल नॉट बी एबल टू सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट GST। ठीक है, तो इन सारी कैटेगरीज में आप देखेंगे कि GST जो है सेट ऑफ नहीं हो रहा है, इसलिए वो आपका कॉस्ट बन गया है। लेकिन जब भी आपका इनपुट GST आउटपुट GST से सेट ऑफ हो जाता है तो वो आपका कॉस्ट नहीं होता, वो एसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज GST इनपुट GST रिवर्स। ठीक है, क्रेडिट रिवर्सल हो जाता है। क्रेडिट रिवर्स हो जाता है मतलब जो आपको मिला था वो वापस चला गया, जो क्रेडिट मिला था वो वापस हो गया। जैसे सपोज करिए परचेज रिटर्न, आपने गुड्स परचेज किया, आप उसको सेल करते है ना, उस पर आपको क्रेडिट मिलता, आप सेल किए है ना, उस पर परचेज का जो इनपुट GST था और आउटपुट GST जो था आपने कलेक्ट किया था वो आपने सेटअप कर दिया। अब सपोज करिए कुछ गुड्स आपने रिटर्न कर दिया है तो उसका जो इनपुट था क्रेडिट जो आपको मिला था वो वापस हो जाएगा। आपने सपोज करिए 2000 रुपीज का गुड्स खरीदा तो 2000 रुपीज के गुड्स पे आपने सपोज करिए 200 रुपीज का GST पे किया, 200 रुपीज का GST पे किया, लेकिन कुछ गुड्स आपने रिटर्न कर दिए। तो जो गुड्स आपने रिटर्न किए उनका सपोज करिए 20 रुपीज का GST बन रहा था, सपोज करिए 20 रुपीज का GST बन रहा था, तो ये 20 रुपीज का आपको क्या क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जब गुड्स भी आपने रिटर्न कर दिया अपने जिससे आपने परचेज किया था, जिस सप्लायर से आपने लिया था, यू हैव रिटर्न द गुड्स टू दैट पर्सन, तो उसको जो आपने जो भी GST पे किया था वो GST रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोपोर्शनेट आपको कैलकुलेट करके देखना होगा कितना GST बन रहा था उतने गुड्स का जो आपने रिटर्न किया है, उतने गुड्स का GST का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको GST का क्रेडिट तभी मिलता है जब वो गुड्स आपने परचेज किया और फिर उसको सेल किया। ठीक है, यहाँ पे तो ये गुड्स रिटर्न ही हो गए जो आपने परचेज किए, तो जब आपने रिटर्न कर दिया तो उस गुड्स के आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज गुड्स लॉस्ट और स्टोलन। आपने कोई गुड्स खरीदा था, उस पे आपने GST पे किया था, इनपुट क्रेडिट पे किया था, अब वो गुड्स you have lost them, it has been stolen, it has been destroyed, it has been distributed as free samples। ठीक है, फ्री सैंपल आपको पता है ना, जैसे कि कोई भी चीज का नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि इट इज अ मार्केटिंग गिमिक है ना, लोगों को पता चले कि कैसे कौन सा नया प्रोडक्ट आया है, सो दैट दे विल बी अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट एंड दे विल बाय इट लेटर ऑन, है ना। तो उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता है। तो इस तरह से अगर आप गुड्स को सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है, लॉस हो गया है, स्टोलन ऑफ हो गया है, इस तरह की कोई भी इवेंट होता है तो इस तरह के इंसिडेंट्स में आपको GST का क्रेडिट रिवर्स हो जाता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सेट ऑफ द क्रेडिट एट दिस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपने इनपुट क्रेडिट दिया था वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आ गया हमारा उसी तरह से, यस वेरी इंपॉर्टेंट, कि चैरिटी में या गिफ्ट में आपने अगर दिया है कोई गुड, है ना, कोई भी गुड आपने गिफ्ट की तरह दे दिया किसी को या चैरिटी में दे दिया,
तो उस पे भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल हो जाता है, मतलब ये क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद लास्ट आइटम जो हम देखेंगे वो है कौन कौन सी जगह पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं देना है, वो एग्जेम्प्ट है ना। कौन कौन सी जगह है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट होना मतलब जिसपे टैक्स लागू नहीं होता, इट इज फ्री फ्रॉम टैक्स, इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द टैक्स, ठीक है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ, हेल्थ सर्विसेज हुई, आपकी एजुकेशनल सर्विसेज हुई, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जहाँ जो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी, ठीक है, उन पे जीएसटी नहीं लगता। तो ये था हमारा जीएसटी का टैक्स का रेट स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन कौन से अलग अलग रेट हैं जीएसटी के, कहाँ कहाँ पे जीएसटी का आपको क्रेडिट मिलता है, कहाँ कहाँ क्रेडिट नहीं मिलता है, इन विच एरियाज दिस क्रेडिट्स आर रिवर्स, ओके, एंड व्हाट आर द areas where the GST is not applicable, okay, it is exempt, okay. Now we'll move on to the next topic, okay students. So now we have come to the last two topics of the session. The first one is characteristics of GST, the second one is objectives or advantages of GST. So first let's discuss the characteristics. GST goods and services tax के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, क्या विशेषता है। सबसे पहले देखिए, it is a comprehensive indirect tax, as I told you when I started with the session that GST एक comprehensive tax है, means its scope is large, okay, it is wide enough to cover all the goods and all the services. इसमें सिर्फ पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर यू कैन से ह्यूमन कंजम्पशन, उस पर टैक्स नहीं लगता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है, इन द सेंस नॉट टैक्स, उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन बाकी जितने गुड्स हैं, जितने सर्विसेज हैं, सारे के सारे जीएसटी के स्कोप में आते हैं, दे आर कवर्ड अंडर जीएसटी, ओके। तो जीएसटी इज अ comprehensive tax, okay, which covers all types of goods and services, and also it is an indirect tax, as I told you that the burden is not falling on the same person on whom the tax is levied. जिस पे टैक्स लागू किया जा रहा है वो ही अपने पॉकेट से पे नहीं कर रहा है इस टैक्स को, है ना। ये टैक्स कौन पे कर रहा है, इट इज बीइंग पेड बाय समवन एल्स, so the burden is falling on someone else, ठीक है। So it is an indirect tax which is very comprehensive. नेक्स्ट इज इट हैज यूनिफॉर्म रेट स्ट्रक्चर, जो टैक्स का रेट स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब पूरे देश में, ओके, इन ऑल द स्टेट्स, इन ऑल द यूनियन टेरिटरीज, एवरीवेयर द टैक्स स्ट्रक्चर, द रेट ऑफ टैक्सेस आर सेम। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, डिस्पैरिटी नहीं है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है, ठीक है। सारे स्टेट्स में, सारी यूनियन टेरिटरीज में जो टैक्स का स्ट्रक्चर है, जो रेट स्ट्रक्चर है, वो सेम है, okay, they are uniformly followed. Uniform मतलब same. Next, GST paid is not a tax. अगर आपने GST पे किया है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि if you have purchased any goods and you are paying GST on the purchase of goods, then that is not your cost because that will be adjusted once you will sell the goods. जब आप वो goods को बेचेंगे, अभी आपने खरीदे हैं, बस जब बाद में आप goods बेचेंगे तो जो आप GST उसमें कलेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि जो गुड्स खरीदेगा आपसे वो आपको जीएसटी पे करेगा, तो आपको जो जीएसटी मिलेगा वो उसमें से आपने जो जीएसटी दिया है वो सेट ऑफ हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। जो बैलेंस अमाउंट है, नेट अमाउंट है, सिर्फ उतना ही आपका कॉस्ट होगा, ओके। सो वॉट एवर जीएसटी यू आर पेइंग ऑन द परचेज ऑफ गुड्स इज नॉट योर कॉस्ट, ठीक है। कुछ रेयर केसेस में होता है जो कि हम लोगों ने अभी देखा, इसके अलावा जनरली आप जितना भी परचेज पे जीएसटी दे रहे हो वो सारा सेट ऑफ होता है फ्रॉम द सेल ऑफ गुड, ओके, जहाँ पे आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो। दैट मीन्स इनपुट जीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। तो ये एक स्ट्रक्चर है जीएसटी का। इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स वही टैक्सेस होते हैं जहाँ पे सिर्फ जितनी वैल्यूज ऐड हो रही है, अलग अलग स्टेज पे टैक्सेस लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे पे ओवरऑल टैक्स लग रहा है, यहाँ पे स्टेज वाइज टैक्सेस लगते हैं और वो सेट ऑफ होते जाते हैं। ऐसे जो सेट ऑफ होने वाला जो स्ट्रक्चर होता है टैक्स का, इसको ही हम वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। दैट इज वाई वी आर कॉलिंग जीएसटी एज अ वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। जो आपने इनपुट टैक्स दिया था वो आउटपुट टैक्स से सेट ऑफ हो रहा है, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ वैल्यू एडेड टैक्स। एंड द लास्ट वन इज देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। टैक्स एक बार दे दिया आपने, सपोज करिए यू परचेज गुड्स and there you are paying the tax, okay, and then again while selling the goods, same goods, you again paying the tax, and then the person who is purchasing the goods will pay the tax and so on. तो इससे क्या होता है कि टैक्स पे टैक्स लगते लगते ये जो गुड्स का जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो बहुत शूट अप हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है,
Okay, because at each you can say stage there is a new tax, है ना, and this tax is paid on the tax. आपका जो परचेज प्राइस है उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है, तो उस परचेज प्राइस पे आप टैक्स दे रहे हो, फर्दर फिर वो आपने किसी को बेचा उसने उस प्राइस पे टैक्स दिया, एंड सो ऑन. सो दिस लीड्स टू टैक्स ऑन टैक्स एंड द प्राइस ऑफ गुड्स बिकम्स वेरी हाई. तो ये चीज यहाँ पे अवॉइड की गई है. यहाँ जितना टैक्सेस है वो आगे आगे सेट ऑफ होता जा रहा है ना. तो आपको डबल टैक्सेशन की मुसीबत कहीं पे भी नहीं उठानी पड़ी. यू डोंट हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ डबल टैक्सेशन. You will pay tax only once and that is the net amount. Okay, you will not have to pay taxes on taxes. Okay, so this is one of the most important feature of GST. क्या क्या चीजें देखिए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं. Comprehensive tax है. It is following uniform rate structure and it is an indirect tax structure. ठीक है, इसमें जो टैक्स रेट है यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में सब जगह विदाउट डिफरेंशिएशन दे आर सेम. Okay, there is no taxes on taxes. It is a value added tax. ठीक है, एंड जो भी इनपुट टैक्स है वो आउटपुट से सेट ऑफ हो जाता है. ठीक है, तो इनपुट टैक्स जो भी आप पे कर रहे हो दैट इज नॉट योर कॉस्ट, दैट इज योर एसेट. एंड वंस यू विल सेल द गुड्स यू विल कलेक्ट सम GST and from that you will set off your output input GST whatever you have paid. तो आउटपुट GST आप कलेक्ट करते हो, इनपुट GST आपने पे किया है, तो नेट पे आप क्या पे करोगे टू द गवर्नमेंट, आउटपुट माइनस इनपुट. ओके, नाउ वी कम टू द एडवांटेज या फिर ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं. सबसे पहला डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स. GST क्यों लेकर आए? Why GST has come into picture? Why GST has been brought into Indian tax structure? Because earlier there were the tax structures that were followed, the tax system was very complicated and there were many taxes which led to very high cost of goods. जो फाइनल गुड्स की वैल्यू आती थी, कॉस्ट आता था, वो बहुत हाई हो रहा था क्योंकि इतने सारे वैरायटी ऑफ टैक्सेस लग रहे थे. अभी क्या हो गया अंडर GST यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर हो गया है. वन नेशन वन टैक्स स्कीम इज फॉलोड. तो जितने भी टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड सो मेनी टैक्सेस, एवरीथिंग हैज बीन मर्ज्ड इनटू वन सिंगल टैक्स दैट इज GST. तो अब आपको हर चीज पे टैक्स नहीं देना है, इतने सारे टैक्सेस नहीं देने. यू डोंट हैव टू पे सो मेनी टैक्सेस. दैट इज व्हाई द कॉस्ट ऑफ द गुड हैज बिकम लेस नाउ. ठीक है, कॉस्ट पे कमी आई है क्योंकि आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि आपका हर स्टेज पे टैक्स सेट ऑफ होता जा रहा है. ठीक है, देयर इज नो टैक्सेस ऑन टैक्सेस. सेकेंड थिंग इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. बिजनेस करने का तरीका इजी हो गया. आपको अगर GST पे करना है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया. अर्लियर मच ऑफ कॉम्प्लिकेशन बिकॉज सो मेनी टैक्सेस वर देयर. ठीक है, इतने सारी जगह में रजिस्टर करवाना पड़ता था, इतने सारे टैक्स पेमेंट के लिए हर स्टेज पे अपने को रजिस्टर करवाना. सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बिजनेसमैन. नाउ सिंस यू कैन से since GST has become effective, businessmen have found it easier to manage their business and to pay GST because there's one tax system and they don't have to register in so many places. They just have to register once and they have to pay the tax. ठीक है, तो वो टैक्स आराम से पे कर रहे हैं, उनको समझ में भी आ रहा है. So it is easy for them. Developing common national market. जब एक टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो होगा एक जैसा नेशनल जिसको बोलते हैं मार्केट डेवलप होगा, है ना. देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन द प्रोडक्ट मार्केट थ्रू आउट द कंट्री. एवरीवेयर द प्राइसेस विल बी सिमिलर. प्राइसेस अलग अलग नहीं होंगे, कहीं पे बहुत सस्ता है, कहीं पे बहुत महंगा, ऐसा नहीं. यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर से यही फायदा हुआ है कि जो प्राइसेस हैं गुड्स के वो ऑल ओवर इंडिया हैव बिकम यूनिफॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट इज रिडक्शन इन टैक्स इवेजन. टैक्स मैंने आपको बताया, टैक्स इवेड करना क्या होता है, टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स. Okay, to not to pay the tax. So why you are avoiding to pay? Not just because you are a fraud. कुछ लोग ही fraud होते हैं, सारे लोग fraud नहीं होते, but still they are not paying the tax. Why they are not paying the tax? Because I told you the tax structure was very complicated. There were number of taxes. So the businessmen found it very complicated. They did not understand the structure. So what they did, they used to avoid altogether.
ठीक है, तो वो ऐसा नहीं था कि वो पेमेंट नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, दे डिड नॉट हैव द टाइम एंड द स्कोप एंड द लिबर्टी टू रजिस्टर इन सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड देन पे सो मेनी टैक्सेस। ठीक है, तो वो क्या करते थे, टैक्स पे नहीं करते थे, दे यूज्ड टू अवॉइड द पेमेंट। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, since the complications have been removed, there is only one type of tax, that is GST, okay, and the process has been made easier, so the businessmen are paying the tax, okay, the tax evasion has come down। जितने लोग जो एक्चुअल में सिर्फ फ्रॉड केसेस से सिर्फ वो लोग ही अभी टैक्स इवेड कर रहे हैं, है ना, बट दे आर ऑल्सो कमिंग अंडर since the structure is such, they cannot avoid altogether, government is getting a hold on the people who are evading the tax। तो जो जानबूझ के evade कर रहे हैं उनको तो पकड़ा ही जा रहा है, लेकिन generally the people who wanted to pay the tax but they did not pay the tax because they found it complicated, so now they are paying because the structure has become very easy, okay, simple and easy to understand। Next is attract foreign investment। Obviously foreign investment has FDI, foreign direct investment, they have increased in India। Why? Because even the foreign investors, they are finding it easier to understand the tax structure in India, है ना, पहले जो tax structure था इतना complicated था, उनको भी समझ में नहीं आता था, so they avoided investing in Indian market। Now they are investing in India because they are understanding the GST structure, okay, and then transparent, regular and predictable। जो भी टैक्स स्ट्रक्चर है वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब इसमें कोई भी चीज हिडन नहीं है, देयर इज नो हिडन चार्जेस, देयर इज नो हिडन टैक्स, ओके, एवरीथिंग इज ओपन एंड क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, सो देयर इज नो हिडन कॉस्ट और हिडन टैक्स इन्वॉल्वड, whatever is very transparent and the taxpayer, okay, and it is easy to understand, it is a regular tax, आपको पता है कि कब कब आपको कैसे कैसे देना है, आपको कोई भी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, देयर इज नो काइंड ऑफ यू कैन से कॉम्प्लिकेशन और एनीथिंग विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सिंपल स्ट्रक्चर है, इजी टू अंडरस्टैंड है ना, सो यू आर एबल टू पे द टैक्स, इट इज प्रेडिक्टेबल, आपको आराम से जीएसटी का कैलकुलेशन, जीएसटी का पेमेंट, एवरीथिंग हैज बिकम वेरी वेरी इजी, ओके। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इतने सारे मर्ज हो गए जीएसटी में, इससे इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्ट्रक्चर था वो पूरा it has become easy, okay, for the taxpayer, so they are not avoiding the tax payment, they are making the payment because they are understanding the structure, okay। So these were the objectives also and these are the advantages। क्या क्या advantages है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले जो इतने सारे टैक्सेस हटे हैं, सिर्फ आया है, टैक्सेस और टैक्सेस जो होता था डबल टैक्सेशन वो सब हट गया, इसके कारण जो प्रोडक्टिव कॉस्ट है वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको सेट ऑफ मिल जाता है। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन जो है उससे बहुत ज्यादा कमी आई है, सिर्फ जो कुछ केसेस हैं जहाँ पे फ्रॉड केसेस हैं, ओनली दे आर स्टिल अवॉइडिंग द टैक्स, अदर्स आर पेइंग द टैक्स बिकॉज इट इज वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड, इट हैज बिकम सिंपल, ठीक है। Common national market has developed because of the uniform tax structure, and foreign investments are attracted in India because they are understanding the tax structure in India, and it is a transparent tax payment structure, transparent calculation, transparent and regular payment, okay। So all the taxpayers are finding it easy to handle GST and to pay them on timely basis, okay। So this was all about the features, the objectives and advantages of the GST. We talked about GST rate structure, okay, how input credit is set off against the output tax collected, and how many different types of central taxes and state taxes which are merged into the GST right now after the after GST became effective, okay। So these are the topics that we have covered today. Go through them, read from the notes and read from the book. If you find anything which you have not understood, you can contact me, okay। So in the next session, we will move on to the numerical part of GST. Thank you so much, students.